Now today I will start a next topic which is Cayley-Hamilton theorem. ठीक है, so let me just quickly revise all those remarks which are very important for MCQs. Yeah, so let me quickly revise. So for any given matrix of order n by n, number of eigenvalues are always equal to order. Okay, your first remark. Next, in general, trace of a matrix is equal to sum of the eigenvalues, and trace means sum of the diagonal entries, and product of the eigenvalues is nothing but determinant. Okay, this is very strong result. इस पे बहुत सारे MCQs है. Next is eigenvalues for upper, lower and diagonal matrix are nothing but the elements on its principal diagonal. मतलब diagonal पे जो elements है वही आपके eigenvalues आते हैं. A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0, if and only if all eigenvalues are non-zero. Next, यहाँ ये एक ऐसा टेबल है जहाँ से अगर आपके पास A के eigenvalues है, if we have the eigenvalues of matrix A, we can find its transpose, its A raised, then we can find the eigenvalues of A raised to m, A inverse K और A minus Ki. Okay, तो A transpose के और A के eigenvalues same आते हैं. This is your first result. Okay, the eigenvalues of A raised to m are lambda 1 raised to m, lambda 2 raised to m and so on. A inverse are reciprocal 1 by lambda 1, 1 by lambda 2 like that. K into A has eigenvalue K into lambda 1, K into lambda 2 and so on, and A minus Ki has eigenvalues lambda 1 minus k, lambda 2 minus k and so on. इस पे भी MCQs आपको रहेंगे. ठीक है, and next is properties of eigenvectors. So for any given matrix of order n by n, the number of eigenvectors are always less equal to order. Number of eigenvectors are always less equal to order, because in some cases we'll get only one eigenvector, in some cases we'll get two eigenvectors, and in some cases we'll get three eigenvectors. जितने order उतने भी eigenvectors मिलते हैं. So it is always less equal to order. नेक्स्ट रिजल्ट क्या था? इफ x इज द आइगन वेक्टर, k इंटू एक्स इज ऑल्सो द आइगन वेक्टर. मतलब अगर आपका 1 2 3 आइगन वेक्टर है, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, दैट ऑल्सो बिकम द आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू. ठीक है, वो सो ये k इंटू एक्स बेसिकली एक ही आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर है. तो इसलिए आप काउंट जब लेते हो तो आप एक सिंगल काउंट ही लेते हो. ओके, क्योंकि आपको हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं वो आप उस काउंट में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो. ओके, करस्पॉन्डिंग टू एवरी आइगन वैल्यू हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स आर देयर, उसमें आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो. ठीक है, सो दैट इज वन पार्ट. नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स. मैंने आपको पहले बोला है, इस पे कुछ ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है. जस्ट रिमेंबर वन रिजल्ट, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन the eigen vectors corresponding to eigen values are always orthogonal. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल आते हैं. ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है? देयर डॉट प्रोडक्ट x1 ट्रांसपोज इनटू x2 इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो वो डॉट प्रोडक्ट 1 by 1 मैट्रिक्स आना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो ये डेफिनेशन याद रखनी है. ठीक है, सो दिस इज the definition of orthogonal matrix. Next, ये dependent independent vectors के result है. If x1 x2 x3 are the x1 x2 x3 are called linearly independent vectors if and only if their determinant is not equal to 0. Okay, so जैसे कि if I call it as x1, if I call it as x2, if I call it as x3, so here x1 x2 x3 are three vectors, and if I consider a matrix formed by these three vectors, if its determinant is not equal to 0, then these vectors are linearly independent. ये ट्रिक आपको MCQ के लिए ही यूज करनी है. and if the determinant is 0, then it is dependent. MCQs में ही ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे. ठीक है, अगेन आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल अबाउट दिस टू रिमार्क. यहाँ तक तो चलो ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है. ये रिजल्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रहा हूँ. लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा, ये नंबर आएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी एक नंबर आएगा, अपॉन लैम्बडा ए भी एक नंबर आएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स. इसका प्रूफ भी ट्रिवियल है, बट छोड़ो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला. तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट फॉर योर इंटरेस्ट. लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट
ऑफ मैट्रिक्स ए. द प्रूफ इज ऑलरेडी देयर इन अ बुक, इफ यू वांट यू कैन रेफर, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले. एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे. नेक्स्ट इज इफ लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, then 1 by lambda is also eigenvalue of orthogonal matrix. Why this is possible? Can you tell me a reason for this? मुझे पहले ये बोलो, लैम्बडा अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 by lambda. 1 by लैम्बडा. ठीक है, तो 1 by लैम्बडा इसलिए डिफाइन हो रहा है क्योंकि लैम्बडा नॉन जीरो है. ओके, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो यही लॉजिक है यहाँ पे. बट ये रीजन नहीं है, बट लॉजिक यही है क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है? प्लस और माइनस, ऑलवेज प्लस और माइनस 1. सो दैट डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये कभी जीरो नहीं आने वाला, इसलिए 1 बाय लैम्बडा डिफाइन हो रहा है. सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर लैम्बडा आइगन वैल्यू तो 1 बाय लैम्बडा भी आपकी आइगन वैल्यू आती है. ठीक है, इसका भी प्रूफ आप क्या करो, एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देन यू कैन मैनेज दिस थिंग्स. इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट क्योंकि एट देन ये थियरम बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स फॉर एमसीक्यू पर्पज. एंड एक और रिजल्ट मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि इसके आगे एमसीक्यू में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपको ये चेक करना है कि वेदर गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आप उसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, वो जीरो आता है तो डिपेंडेंट, नॉन जीरो आता है तो इंडिपेंडेंट. वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है. ठीक है, समझ में आएगा ना यहाँ से वो रिजल्ट? x1 x2 independent if and only if that determinant is not equal to 0, dependent if and only if that determinant is equal to 0. Okay. सर वैसे ही मैं कैसे पहले सीखा था सर कि वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के फिर एक्लोन फॉर्म में लाके वैसे चेक कर सकते हैं. कर सकते हो, बट उतना भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले लो ना. करेक्ट बोला है आपने, वो रैंक पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, बट वो लेंदी प्रोसेस होगी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो. ठीक है, वही तो हम कर रहे हैं ना. मतलब आप जो बोला ना, दैट इज आवर प्रोसेस ना, टू चेक द वेदर गिवन वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. आप वो c1 x1 c2 x2 c3 x3 इक्वल टू 0 लिखते हो ना, बाद में आपको क्या समझ में आता है, अरे क्या हो रहा है कि पहला वेक्टर आपका फर्स्ट कॉलम आ रहा है मैट्रिक्स का, सेकंड वेक्टर सेकंड कॉलम आ रहा है, थर्ड वेक्टर थर्ड कॉलम आ रहा है. ठीक है ना, दैट बिकम योर ए मैट्रिक्स एंड x इज इक्वल टू 0. x होता है c1 c2 c3 और आगे 0. सो एट द एंड जो मैंने रीजन दिया है उस मेथड से आप जा रहे हो, बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स वहां पे फॉर्म होता है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए. इफ इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस मेथड फेल. करेक्ट ना? यस सर. इफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट, अगर मैं एक और वेक्टर ऐड कर भी लेता हूँ यहाँ पे, दिस मेथड फेल. कांट चेक वेदर दिस वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो फिर आपको आपके रेगुलर प्रोसेस से ही जाना होगा. ओके, तो इसलिए एमसीक्यूज में ही ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, बट थ्योरी में अगर मुझे देना भी है आपको, आई विल नॉट गिव स्क्वायर मैट्रिक्स. ज्यादातर केस में मैं अवॉइड ही करूंगा. ठीक है? यस सर. Yes, and now the next topic. This is all about eigen values and eigen vectors. जितने भी possible questions थे सारे कवर किए. Now next topic is Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem. तो स्टेटमेंट क्या है? Every square matrix, so this is only for a square matrix, satisfies its own characteristic equation. Okay, शायद आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू, मैं ऐसा मैट्रिक्स लेता हूँ जिसके ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट किया है. लेट मी टेक एनी मैट्रिक्स, ये नहीं ले रहा हूँ, जिसका आपने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट किया है. ठीक है, नहीं तो मैं रैंडम दे रहा हूँ बुक में से. हाँ, so a is equal to, let me take 3 2 minus 1 2 3 minus 1
एंड -1 4. ठीक है, सो दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ओके, मैं डायरेक्टली आपको दे रहा हूँ. ठीक है, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस, आपको पता क्या आने वाला है, ओके, 4 6 10. सो लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे आता है 27 लैम्बडा माइनस 18 इज इक्वल टू 0. आई थिंक अभी आपको ये पता है क्लियरली कैसे कैलकुलेट करना है. क्लियर? सो दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स जिसका मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है. आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली, बट अभी चलो वो पता ही है तो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम? सो इफ आई राइट लाइक दिस, बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, what do you get? What that theorem tells you? a cube minus 10a square plus 27a minus 18 is equal to 0. Okay, you are almost correct, but very good. Okay, तो क्या थ्योरम है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ये satisfies its own characteristic equation. तो अगर आप इसकी minus I lambda okay, modulus of a minus I lambda is equal to 0 for lambda is equal to a something. okay, so what is the meaning of this statement? This matrix A satisfies its own characteristic equation. This matrix A satisfies its own characteristic equation means what? A cube, मतलब बस लैम्डा की जगह पे ए रखना है. ए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लैम्डा की जगह पे ए रखोगे. सो ए क्यूब माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 27a माइनस 18 इज इक्वल टू 0. ये अभी आई थिंक किसी ने आंसर दिया था, बट इज दिस करेक्ट और व्हाट इज द प्रॉब्लम? 18R. हाँ, क्योंकि ये सारा ये अभी ये मैट्रिक्स आने वाला है, ये भी मैट्रिक्स आने वाला है, ये भी मैट्रिक्स आने वाला है, ये नंबर दिखाई दे रहा है. तो नंबर को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है? जस्ट मल्टीप्लाई विद आई मैट्रिक्स. ओके, देन इट इज करेक्ट. नाउ अभी राइट साइड में भी 0 मैट्रिक्स है. दिस इज योर कैले-हैमिल्टन थ्योरम. और आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम. चेक करो एक्चुअली ए क्यूब, इसका क्यूब माइनस 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस 27 इंटू ए माइनस 18 इंटू आई, whether this value is actually 0 or not, that you have to check. अब ये सारे वैल्यूज मतलब ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए, ये आप डायरेक्टली कैल्स में कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये वेरीफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. इस पे एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा नहीं है वेरिफिकेशन के ऊपर, बट थ्योरी में आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो लेट मी sir, first type is verification, sir. What are the types of questions we can expect? बोलता हूं मैं आगे. ओके, इस पे बेसिकली क्या आता है? कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करो. मैं दिखाता हूं कैसे. नेक्स्ट होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके a⁴ कैलकुलेट करो, लाइक दैट, या ए क्यूब कैलकुलेट करो, या ए कैलकुलेट करो, जो भी. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली आते हैं एमसीक्यूज में. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट. ठीक है, ये एक्सप्लेन करता हूं. सो लेट मी राइट अ रिमार्क. ओके, सो पहला रिमार्क क्या है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम. तो आपको बस करना क्या है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, मल्टीप्लाई given इक्वेशन बाय ए इनवर्स. ठीक है, तो आपको बस करना क्या है? जस्ट मल्टीप्लाई दैट गिवन इक्वेशन बाय ए इनवर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दिस रिजल्ट यू विल गेट फ्रॉम कैले-हैमिल्टन थ्योरम, है ना? यहां तक तो समझ में आ रहा है? दिस इज द थ्योरम. एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसके आगे मैंने आपको क्या पूछा है? इसके आगे आपको मैंने क्या पूछा? फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स आपको डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम से कैलकुलेट करना है. पॉइंट समझ में आ रहा है? फाइंड ए इनवर्स यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा वहां पे. तो उसके लिए बस क्या मेथड है? जस्ट मल्टीप्लाई दैट गिवन इक्वेशन बाय ए इनवर्स. सो हाउ यू डू दिस?
just multiply given equation by A inverse. So let me show you that calculation. So if this is equation 1, okay, तो आप क्या करोगे बोलो? सर a स्क्वायर बन जाएगा फिर a स्क्वायर माइनस हाँ 10 करेक्ट. A So multiply प्लस 27 equation 1 by A inverse, तो क्या मिलेगा बोलो? करेक्ट बोला था a स्क्वायर a नेक्स्ट स्क्वायर माइनस 10a प्लस 27 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, A into A inverse is identity minus 18 A inverse ना, A inverse, yes. and is equal to 0. Zero So now matrix. shift all these terms on right hand side और A inverse को बस बाहर लेके आ जाओ. That completes the question. So just tell me, is this correct or not? So A inverse is equal to 1 by 18 in bracket A square minus 10A plus 27I. करेक्ट है क्या ये? Yes sir, that completes the question. Yeah. So this is ये ऐसा आपको आने वाला है MCQs में 2 मार्क्स के लिए. इतना ही पार्ट रहेगा. फाइंड A इनवर्स फ्रॉम कैलकुलेटर थ्योरम. ओके, ये थी आपकी पहली केस. सेकंड केस भी देता हूँ. टू फाइंड वैल्यू ऑफ A raised to 4 using Cayley Hamilton. We are going to just multiply a sir, yes. हाँ ओके, तो वही लॉजिक है. सो इन दैट केस जस्ट मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स बाय ए. ठीक है, सो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय ए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए, है ना, क्या था आपका इक्वेशन 1? Can you tell me? Just multiply this one first equation by A. A cube minus 10a square. A raised to 4. Oh, I'm sorry, a raised to 4 minus 10a cube A cube plus plus 27a square hmm, minus 18a minus 18a equal to 0. Zero. Okay. Yes, sir. Then you can write the value of A raised to 4. So therefore, A raised to 4 is equal to 10 cube 27a square plus 18a. डन. ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. यही दो पॉसिबल क्वेश्चंस है जिस पे ज़्यादा कुछ. सर हाँ बोलो ना. सर लैम्डा आइगन वैल्यू है ना, करेक्ट. और हमने पहले ही मतलब हमें मालूम है कि लैम्डा आइगन वैल्यू इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, Yes. दैट इज अ रियल नंबर. यस. तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा ए को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं व्हिच इज अ मैट्रिक्स, यस. तो बेसिकली हम पहले ही अज्यूम करें कि ए इज गोइंग टू इट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी 0. यस, मतलब ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और थ्योरम क्या, व्हाट इज द थ्योरम, कि ये जो इक्वेशन है ये ए मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है. दिस इज द थ्योरम. अब इसका प्रूफ चलो हम आपको तभी आ रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो कहीं पे भी प्रूफ आपको नहीं आने वाला. सो ये थ्योरम है कि इफ दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए मैट्रिक्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. ओके, लेट मी शो यू वन एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल से ये प्रॉपर शो करके दिखाता हूं. सो लेट मी टेक sir, बोलो sir, ना. it simply means sir that if you replace lambda with matrix A, then it will just satisfy the equation. यस. No, तो no. ये जो वैल्यू आ रही है ना, अभी आप देखो ये मैट्रिक्स है बेसिकली लेफ्ट साइड में. करेक्ट ना. Yes, sir. ए क्यूब Yes. माइनस 10 स्क्वायर प्लस 27 माइनस 89. अगर आप परफॉर्म करते हो एट दैट आंसर क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ही मिलेगा ना. Yes sir. तो वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आता है. दिस इज अ रिजल्ट. तो इसका इक्वेशन, इसका यूज आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क दिस व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बोलो a raised to 6 minus 10 a raised to 4 plus 27 a cube minus 20 a square. Let me take. ओके, या तो ठीक है. इतना लेंथी एक्सप्रेशन मुझे अगर सॉल्व करना है, और कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, कैसे करोगे? अरे तो a स्क्वायर को वो कर देंगे सर 0
मतलब a स्क्वायर हटा सकते हैं ना सर इक्वेशन में, इक्वल टू सर दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 राइट सर? हाँ करेक्ट आपने गेस करेक्ट किया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ऐसे दिखाई दे रहा है इसको, है ना? तो ये भी कोएफिशिएंट मैच कर रहा है, 27 भी मैच कर रहा है, -18 मैच नहीं कर रहा है। तो लेट मी स्प्लिट दिस, तो इसको मैं क्या करता हूँ, -18 एंड -2, करेक्ट है ना अभी? हाँ, और ये आगे का पार्ट एज इट इज। a पावर 6 a पावर 5 है ना? क्या हुआ सर a⁵ आएगा तो फिर का? ओके हाँ, यहाँ पे ना, सॉरी, ओह गॉट इट। हाँ, सो लेट मी राइट लाइक दिस, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई ऐसे आपको दिखाई दे रहा था, तो आपने पहले कोएफिशिएंट चेक किए, तो -10 मैच हो रहा है, 27 मैच हो रहा है, 18 मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने 20 को दो पार्ट में स्प्लिट किया, नाउ -18 एंड -2 a स्क्वायर। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन से आई कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, सो व्हाट इज इन द ब्रैकेट, a क्यूब minus 10a raised to square plus 27a, correct, Plus 18, minus minus 18i minus 2a square as it is। but ये एक्सप्रेशन क्या है by Cayley-Hamilton theorem? 0। what you get here, a square minus 2a square means what? a स्क्वायर सर, a स्क्वायर भी कैसे बचेगा सर? -2 सर -2 it is equal to minus only 2a minus 2a square। okay, this is the application of Cayley-Hamilton theorem। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस लेंथी एक्सप्रेशन, ये सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, a⁵ कैलकुलेट करना पड़ेगा, a⁴ कैलकुलेट करना पड़ेगा, a क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा, a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उनकी सम। ओके, इतना वो लेंथी एक्सप्रेशन है, बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट -2a स्क्वायर। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ Cayley-Hamilton theorem। ओके, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पे रहेंगे। हाँ, आई थिंक अभी थ्योरम में कोई प्रॉब्लम थी क्या? एनी प्रॉब्लम इन थ्योरम? ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, तो आपको इसका यूज भी समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। एक तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सर, हाँ बोलो ना। सर आइगन वैल्यू रियल नंबर होना चाहिए ना, हम मैट्रिक्स को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके दैट इज द अंदर? थ्योरम ना, दैट इज द just थ्योरम। satisfies if we just replace it with a। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस a x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है ना, जैसे लैम्बडा रियल नंबर का इक्वेशन है। ओके, अगर मुझे बोलना है कि ये सेम इक्वेशन मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करता है, तो मैं क्या करूंगा, a² प्लस 2 टाइम्स i इज इक्वल टू 0। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। a² एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, प्लस 2 इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो सम है, ये मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 0। So can I use this equation in matrix? कर सकते हो ना आप ऐसे? रियल नंबर नहीं होगा ना। हाँ, मतलब वो रियल का इक्वेशन है। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि आप बोल रहे हो कि सर वो रियल का इक्वेशन है, मैट्रिक्स में कैसे जा रहा है। ओके, यू कैन कन्वर्ट, दैट इज द थ्योरम, वही तो थ्योरम है। इक्वेशन रियल का था, बट वो सेम जो इक्वेशन है वो मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करता है, दैट इज द थ्योरम। Sir, are you going to explain this derivation or we have to just learn the equation? I will not explain proof of any theorem in your syllabus, ठीक है। Okay, जहाँ पे yes. मुझे लग रहा है कि ये ट्रिवियल है, तो दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, बट ये ओके, ऐसी चीज़ें आप एग्जाम्पल के भी थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो। एट देन एज पर आवर सिलेबस इज कंसर्न फ्रॉम M1 M2 M3 तीनों कोर्सेज में कहीं पे भी थ्योरम का प्रूफ नहीं है आपको, ठीक है। तो Yes. जहाँ पे मुझे सिंपल लग रहा है, जो एक्सप्लेन करना ईजी है, दैट आई विल एक्सप्लेन, बट ये लेंथी प्रूफ है, सो इट विल टेक टाइम, एंड वैसे सिलेबस में भी नहीं है। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी कंफ्यूजन ऑन दिस, लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, तो आपको वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 1, ऐसे जनरली आपको क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक ही एग्जांपल लूँगा क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस नंबर चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। इज इट विजिबल? Yes, sir. सो लेट मी एक्सप्लेन। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ फोकस हियर, तो आपको थ्योरम भी समझ में आएगा और उसका एप्लीकेशन।
verify Cayley-Hamilton theorem. Okay, what is your Cayley-Hamilton theorem? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So let me first find the characteristic equation of this matrix. Okay, so characteristic equation of matrix A, और कैलकुलेट करो. मैट्रिक्स A इज क्या है वो, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस. व्हाट इज योर ट्रेस? 2 4 1 5, करेक्ट ना? प्लस माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा वो? 2 ना? माइनर ऑफ सेकंड डायगोनल एलिमेंट 3 थर्ड डायगोनल एलिमेंट 2 times lambda. Can anyone tell me determinant? 3 Okay. So if I simplify this, therefore lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3 equal to 0. चेक करो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसमें मिस्टेक होगी तो -3 यार. हाँ नहीं ये कैरेक्टर इक्वेशन ही है अभी. ओके, अरे बेटी अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है ना, अभी तक लैम्बडा में लिखा है मैंने इसको. सर डिटरमिनेंट -3 आएगा. -3 कह रहा है सर, डिटरमिनेंट -3 है. ओके, सो हियर आई हैव टू कंसीडर प्लस साइन, करेक्ट ना? Yes, yes. ओके, या ठीक है. हाँ, सो नाउ आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको. यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए. व्हाट इज Cayley-Hamilton थ्योरम? ओके, सो बाय Cayley-Hamilton theorem, what this theorem says, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करता है. इट मीन्स व्हाट? ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ए. अभी आप +3 नहीं लिख पाओगे क्योंकि क्या होगा, 3 नंबर है. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वैल्यू को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ लैम्बडा की जगह पे ए पुट करके, बट यहाँ पे लैम्बडा है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 इंटू क्या होगा, आई होगा, इज इक्वल टू 0. नाउ लेट मी गिव यू प्रूफ इन द सेंस, लेट मी वेरीफाई दिस स्टेटमेंट. आपका आई थिंक वही क्वेश्चन है कि सर ये रियल का नंबर है, मैट्रिक्स में कैसे सेटिस्फाई कर रहा है. सो लेट मी वेरीफाई दैट पार्ट. वही तो आपको करना है, वेरीफाई दिस रिजल्ट. ये एक्चुअली हो रहा है कि ना, वेरीफाई करो. ठीक है, सो एवरीवन नाउ प्लीज बोलो. डिटरमिनेंट पॉजिटिव ही आता है. यस सर. हाँ प्लीज. डिटरमिनेंट -3 -3 होगा. इसमें मिस्टेक हो गई तो वैसे भी वो 0 नहीं आने वाला. ये रॉन्ग आता है ना तो आपको राइट साइड में 0 नहीं मिलेगा, तो वो वैसे भी आगे आपको मिस्टेक समझ में आ जाएगा, बट ज़्यादा लेट होगा फिर वो. इसलिए पहले ही करेक्ट करो, या तो इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करो, वेरीफाई विद द ट्रेस. समझ में आ रहा है? एट द एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन. इफ यू डोंट वेरीफाई, आगे पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं -3 लिखता हूँ. अभी करेक्ट है? ओके, नाउ लेट मी वेरीफाई दिस स्टेटमेंट कि एक्चुअली ये इक्वेशन 0 आता है कि नहीं. तो उसके लिए मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना होगा. ओके, आई नीड टू कंसीडर फर्स्ट LHS एंड आई विल शो दैट दिस LHS इज इक्वल टू RHS. सो व्हाट इज माय LHS? a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स a माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी. ओके, नाउ लेट मी फर्स्ट स्टोर दिस मैट्रिक्स. ये मैं सब कुछ कैलसी में करने वाला हूँ, आप भी करो साइड बाय साइड. लेट मी जस्ट स्टोर. Okay, so now I'm already in matrix mode, so let me go to options, define a matrix. Let me take A, 3 rows 3 columns. Okay, so 2 1 1, next 0 1 0 1 1 2. Clear? Now let me press AC. So this matrix gets stored. Now how I find A cube? Bolo. How I find A cube? Let me take matrix A on a screen. इसका क्यूब कैसे कैलकुलेट करोगे? I don't know अभी ये वर्क करेगा कि नहीं. हाँ, I don't know whether this will work or not. कुछ कैल्सी में वर्क कर रहा था, कुछ कैल्सी में नहीं है. So let me first check. नहीं कर रहा है. ठीक है. तो what is the other way? So first we can put square and then
multiplied by matrix of A. या तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैट ए इंटू मैट ए इंटू मैट ए, Yes, sir. दैट इज द लास्ट ऑप्शन है ना. ये वर्क नहीं कर रहा है, ये बटन वर्क नहीं कर रहा है. ये भी एरर उन्होंने रिमूव की थी, बट अभी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है. ठीक है, सो लेट मी टेक दिस मैट ए एंड मैट ए, करेक्ट ना. सो इट गिव्स मी क्यूब. सो व्हाट इज दैट क्यूब, लेट मी राइट इट. ओके, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1403. So what is value of a cube? 14, 13. Next 0, 1, 0. 0, 1, 0. Next 13, 14. ठीक है, अभी कैसे कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है. नाउ -5. कैन यू टेल मी a स्क्वायर मैट ए इंटू मैट ए करके बोलो. Sir, 5, 4, 4. फिर से बोलो फर्स्ट रो. 5, 4, 4. 5, 4, 4. हाँ. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 4, 4, 5. 4, 4, 5. Yes. This is -5 times. ठीक है, let me first remove this. हाँ, नेक्स्ट क्या है फिर, +7 टाइम्स a. तो a मैट्रिक्स तो मुझे पता ही है. a मैट्रिक्स मेरा क्या था, 2, 1, 1, 0, 1, 0. 14, 7. 2, 1, 1, 0, 1, 0. नेक्स्ट क्या है, 1, 1, 2. चेक करो अगर कहीं पे कुछ एंट्री रॉन्ग आ जाती है तो. ठीक है, एंड माइनस क्या है, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो क्या है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, सॉरी 1. तो इसका आंसर मुझे कंपलसरी क्या चाहिए टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम? नल मैट्रिक्स. ओके, इट हैज टू नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. ओके, तभी वो थ्योरम वेरीफाई होगा. ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू दिस कैलकुलेशन. ठीक है, आपको वो आप चेक भी कर सकते हो. हाँ, बट मैं आपको कैलसे भी दिखाता हूँ कि वाई इट इज 0. या इतना कुछ नहीं करना, बस एक एंट्री चेक करो. सो लेट मी एंटर हियर 14 1 by 1. ये एंट्री कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी मैं. ठीक है, तो पहला नंबर से कैलकुलेशन करना. 14 माइनस क्या होगा, 25. नेक्स्ट प्लस 14 -4. एक ही एंट्री वेरीफाई करनी है. -3 है ना. Yes, sorry sir. -3 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. डन. आगे की एंट्री चेक भी मत करो क्योंकि वो करेक्ट ही आने वाला है. ठीक है, एंड यू कैन वेरीफाई ऑल दिस एंट्रीज. सो ऑल दिस एंट्रीज आर 0. दिस इज योर कैले-हैमिल्टन थ्योरम. अभी समझ में आ गया सबको थ्योरम क्या है बेसिकली. Yes sir. ओके, एनी डाउट इन दिस थ्योरम नाउ. सो विच इज इक्वल टू RHS. डन. दिस यू कैन ट्रीट एज अ प्रूफ. ओके, तो ये थ्योरी में क्वेश्चन आने वाला, आप जब जैसे अगर आता है तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है. ये सारा कैलसी में करो. वो आता ही है 0, बट आप प्रॉपर कैलकुलेशन करो. कहीं पे एंट्री रॉन्ग आती तो विल मतलब वहीं पे आपके मार्क्स लेस हो जाएंगे. डन. ये था आपका पहला पार्ट, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम. अभी उसके आगे उन्होंने क्या बोला है, यूज दिस कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड A इनवर्स एंड A⁴. ओके, सो फर्स्ट क्या है, A इनवर्स कैलकुलेट करना है. सो टू फाइंड A इनवर्स आपको बस करना क्या है, मल्टीप्लाई दैट गिवन इक्वेशन. दैट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय A इनवर्स. अब इक्वेशन 2 क्या था, वो जो आपका मैट्रिक्स का इक्वेशन है. सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस. Sir. हाँ बोलो. Sir, every time while solving we have to check the values of means we have to substitute matrix A in that lambda. No, I'm not getting your question. क्या बोल रहे हो आप? So we have to always check that whether it's satisfied. ये वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि क्या होगा आप देखो, अगर यहाँ पे हमने प्लस लिया होता, ये आंसर जुड़ा आने वाला है क्या, नहीं आने वाला ना. हाँ. तो फिर इसके बाद मिस्टेक आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट जाएगा. इसलिए जब आप यहाँ पे आते हो ना, अभी मेरा क्वेश्चन कहता है हाउ यू वेरीफाई दिस इक्वेशन. इसको वेरीफाई कैसे करोगे, ये करेक्ट है कि नहीं, कैसे वेरीफाई करोगे आप. इफ आई आस्क यू, While substituting. इसके बाद तो वेरीफाई हो ही जाएगा, बट इट विल टेक अ टाइम.
ये पूरे प्रोसेस होने में ऑलरेडी टाइम जाने वाला है ना। इसके आगे अगर आपको ये नॉन जीरो इंटीग्रल मिल रही है तो आपको बस ये समझ में आएगा अगर मैंने कहीं पे तो मिस्टेक की है, ओके। तो फिर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि यार मैंने ए स्क्वायर ए क्यूब में मिस्टेक की है या मैंने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मिस्टेक की है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा था, दिस इज फॉर सेपर साइड, कि यहाँ पे आप क्या करो, इसके रूट्स कैल्शियम में कैलकुलेट करो। इसके जो रूट्स आते हैं वो बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यूज, करेक्ट ना। Yes. एंड वो जो आइगन वैल्यूज है उनकी सम और डायगोनल की सम सेम आती है तो ये इक्वेशन आपका करेक्ट होगा। तो ये इसको फिर से रीचेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मिस्टेक हो भी जाती है नीचे कहीं पे तो वो ए स्क्वायर ए क्यूब या ए में ही होगी। दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जब आप आगे जाते हो ना फिर से पीछे जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और उसकी वजह से आपको फिर पेपर कवर नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके। तो इसलिए ये मैं ट्रिक दे रहा हूं, इफ यू अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, नहीं चेक करने की जरूरत है, देन नो प्रॉब्लम, ओके। बट ये याद रखो कि कहीं पे भी अगर आपको कोई स्टेप चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, यू मस्ट नो हाउ टू वेरीफाई इट, ओके। ओके, अभी कैले-हैमिल्टन थ्योरम से आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए जस्ट मल्टीप्लाई दिस सेकंड इक्वेशन बाय ए इनवर्स। सो कैन यू टेल मी दैट सिंप्लीफिकेशन? सो what is the simplification when you multiply equation to by a inverse? A square minus 5a minus 5a plus 7i plus 7i minus 3a inverse. Which we can shift on the right side. We can directly Yes. write it as 3a inverse equal So to a inverse is equal to 1 by 3 in bracket a square minus 5a प्लस 7 टाइम्स आई। ये एमसीक्यू में आपको यहां तक ही आने वाला है। बट अगर आप थ्योरी में हो, आपको ए इनवर्स कैलकुलेट भी करना है, बट कहां से, कैले-हैमिल्टन थ्योरम से। तो इसके आगे मुझे क्या करना होगा, मुझे कैलकुलेट करना है ए इनवर्स, बट नॉट बाय कैलकुलेटर और नॉट बाय योर एडजॉइंट मेथड, मुझे कैले से ही कैलकुलेट करना है। तो इसके आगे मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट नीड टू पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मुझे मिल जाएगा ए इनवर्स, करेक्ट ना। yes sir. सो व्हाट इज माय ए स्क्वायर, मैं यहाँ से भी कॉपी करता हूँ। सो इट इज इक्वल टू, ये 1/3 वैसे ही रहेगा। सर हम कैल्सी पे भी डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, फिर चेक करने के लिए कि हमारा हाँ, correct वेरीफाई है। करने के लिए, करेक्ट ना। Yes, sir. अभी आपको भी पता है इसका कुछ रोल है ही नहीं, ओके, क्योंकि जब आप कैल्सी में डायरेक्ट मिल रहा है तो वैसे प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट मच यूजफुल, है ना। बट थ्योरम के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में। सो ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, 5 4 4 0 1 0 0 1 0 सॉरी, नेक्स्ट 4 4 5, ठीक है। ये था ए मैट्रिक्स। अभी ये ना 1/3 बाहर है, तो इसको मैं तो अच्छे से लिखता हूँ, ये 1/3 इसके अंदर सब कुछ चल रहा है और ये स्क्वायर है, ठीक है। -5 टाइम्स ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है, क्या था ये मैट्रिक्स, 2 1 1 0 1 0 1 1 2, ओके। नेक्स्ट क्या है, +7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and this big bracket you have to end here. Now can you do this simplification? yes sir. और बोलो मुझे क्या आता है फाइनली। -5 no -5 +2 आएगा सर यहाँ पे। Okay, just tell me all these entries. Do it quickly. Then I will verify. Then I will verify from calci कि whether this A inverse is correct or not. या तो अगर आप स्मार्ट हो ना, इसके आगे आप क्या करोगे, कैल्सी से A इनवर्स कैलकुलेट करोगे, वही कॉपी करोगे, डन ना। आने तो वही, मतलब वही तो आने वाला है, आपको भी पता yes, है ना। तो अगर मैं कैल्सी से भी कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ ना, दैट विल ऑल्सो नॉट, ओके। अभी शायद वो रिमूव हो गया होगा मैट्रिक्स। Anyone please tell me on calci what you get, calci में क्या मिल रहा है, मुझे वो भी बोलो। So 2 1 1 0 1 0 1 1 2 डन।
ठीक है, एंड देन टू जस्ट टेक इट्स इनवर्स, सो मैट ए इनवर्स का कहा गया अभी यहाँ पे इनवर्स, आपको पता है। तो अभी मैं यहाँ से भी एंट्री कॉपी कर सकता हूँ। हमेशा ये फोकस करो कि जब आप एंट्री लिखते हो तब कहाँ से लिखने हैं, नीचे से लिखने हैं। तो पहला नंबर क्या है 2/3, 2/3 मीन्स ये 3 ऑलरेडी बाहर है तो 2 लिखना है ना। यस सर। हाँ, नेक्स्ट एंट्री क्या है -1/3, बट 3 ऑलरेडी बाहर है तो क्या आएगा -1। नेक्स्ट सर ऐसे कोई तरीका है सर जिससे डायरेक्टली मैट्रिक्स में ही हमें दिखाई दे सर ऐसे 2/3? नहीं, क्योंकि ये लाइन मोड में होता है, विच इज नॉट ओके पॉसिबल। यस सर। ये लाइन मोड में होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 0 1 0, तो 0 -4 0। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना होगा, अगर 1 आ रहा है तो 3 बाहर है, 3 ना 3। नहीं तो आप ये भी कॉपी कर लेते हो ना डायरेक्टली 1/3 को, 1/3 बाहर ही मत रखो, डायरेक्टली अंदर लिखो, दैट इज ऑल्सो फाइन। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ ना मैं, सो इजी जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये एडजस्टमेंट करके, क्योंकि एट द एंड आई जस्ट वांट दैट ए इनवर्स। सो कैन एनीवन टेल मी अगेन क्या था? 2/3 -1/3 -1/3 0 1 0, ये शायद -1/3 1 ऐसा ही कुछ आएगा, बोलो। -1/3 -1/3 2/3। डन। ये थ्योरी में क्वेश्चन ऐसे आता है, ओके। एमसीक्यूज में यहाँ तक ही होगा, इसके आगे नहीं आएगा, ओके डन। एंड सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट a⁴. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट अ पार्ट आल्सो। टू फाइंड a⁴, just multiply equation 2 by a. what is your equation 2? ये था आपका मेन इक्वेशन। लेट मी जस्ट कॉपी दिस इक्वेशन एंड इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो व्हाट हैपन इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय a, क्या क्या चेंज होगा, बोलो। सर एक डाउट था सर, अभी जैसे जो इक्वेशन है सर, मान लीजिए सर यहाँ पे जैसे a³ है सर, हाँ। सर a³ के नीचे डायरेक्टली a³ की वैल्यू लिख दी एग्जामिनेशन में तो चलेगा या फिर पूरा लिखना पड़ेगा सर? नहीं, डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली लिखो, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करना है आपको। सर क्योंकि आपने कहा था सर वो दिखाना नहीं है कि कैलसी से वो। हाँ, अभी आप ये स्क्वायर भी कैलकुलेट करोगे ना, ओके। हम साइड में कहीं पे करेंगे ना a × a करके, मैन्युअली अगर करना है तो, बट लिखते समय आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली लिख सकते हो। थैंक यू सर। वो अंडरस्टूड होता ही है वैसे, ठीक है। तो a से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस इक्वेशन से, यू विल गेट a⁴. नेक्स्ट a³ -5a³ + 7a² into a -3a equal to 0, and then just calculate a⁴. So a⁴ is equal to 5a³ -7a² + 3 times a. बस वैल्यूज पुट करो, एक्चुअली यहाँ तक ही एमसीक्यूज में आने वाला है, ठीक है। और इसके आगे आपको थ्योरी में ये कैलकुलेट करना होगा। सो a⁴ इज इक्वल टू 5, a³ का क्या था, ऊपर कुछ तो कैलकुलेट किया था ना, 5 4 4 का है ना, ठीक है। सो 5 4 4 0 1 0 0, सॉरी 4 4 5 ना, 4 4 5 सर वो क्या था, ये नहीं था क्या, सॉरी ये नहीं था ना, 15 14 13 में था, ओके 14 13 में था। सो 14 13 13 13 13 14 करेक्ट है। अभी चेक करो एक बार, अगर मुझे बोलो। एंड यहाँ पे अभी 5 4 4 0 1 0 4 4 5 एंड प्लस 3 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 3 into आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स क्या था, 2 1 1 0 1 0 1 1 2 ना, ठीक है। एंड इसके आगे भी क्या करना है, ये करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैलसियम ही करो ना, पता है आपको क्या आने वाला है। यू हैव ऑलरेडी स्टोर मैट्रिक्स ए, है ना, तो उसका आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, 4 a⁴ कैलकुलेट करना है, तो 4 बार ले लो, 2 3 4। यू कैन वेरीफाई कि यही मिलता है कि नहीं आंसर। 41 40 में आता है, सो चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, आ रहा है क्या, चेक करो।
आ रहा है? ये फर्स्ट एंट्री तो सर 41 ही आ रही है सर। ठीक है, डन, बाकी आ ही जाएंगे, उसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको थियरी में आता है। ठीक है, तो जितने पॉसिबल थे सारे, इसलिए इसके आगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मेथड तो यही है, नंबर्स बस चेंज होने वाले हैं। सो आई विल टेक ओनली वन एग्जांपल ऑन दिस प्रोसेस। तो ये थियरी क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एमसीक्यू में ये इक्वेशन आएगा, ओके, या तो ये ए इनवर्स आएगा, ये 2 मार्क्स का जो मैंने लिखा है, या तो ये रेस्ट टू 4 आएगा। इतना ही आपको एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी आ सकता है थ्योरम का 1 मार्क के लिए। व्हाट इज द कैला-हैमिल्टन थ्योरम? डन, दिस इज ऑल अबाउट कैला-हैमिल्टन थ्योरम। कुछ डाउट्स है आपके साइड से तो बोलो। ओके, बाकी क्वेश्चंस यू कैन, इफ यू वांट यू कैन डू द प्रैक्टिस फ्रॉम दिस। ठीक है, बट सेम यही नंबर चेंज होने वाले, सो लेके भी कोई वैरायटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। सो मैं आगे के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 2 3 4 5। यहाँ पे ये भी ए इनवर्स ए रेस टू -2 ए रेस टू -3 भी बोला है। जो कैलकुलेट करना है वो अब बस वो वैल्यू आपको इक्वेशन में मैनेज करनी है। ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो ए इनवर्स मैनेज करना होगा। ए रेस टू -2 मैनेज करना है तो उस हिसाब से 2 बार ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, लाइक दैट। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस मेथड? And now I think 2 topics are remaining. One is diagonalization, which is totally depend on eigenvectors. ठीक है, कुछ नहीं करना है, आइगन वेक्टर से कैलकुलेट करना है, बस टाइटल आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। सो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस डेफिनेशंस हियर, सो क्विकली हो जाएगा। गिव मी 1 मिनट, पॉज कर। यस, विजिबल है प्रॉपर? Yes, sir. हाँ, so what is the next topic now? So we have completed 2 topics, eigenvalues and eigenvector over, Cayley-Hamilton theorem over. Now third topic is diagonalization. ठीक है, so can you tell me what is the meaning of this word diagonalization means what you feel कि क्या आपको लग रहा है कि इस वर्ड से आपको क्या मिलने वाला है? Sir, maybe making all entries except diagonal 0, maybe. Yes, okay, or it simply means okay, you have to convert a given matrix into diagonal matrix. देखो रिजल्ट कितना स्ट्रांग है, आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हो विद वन प्रॉपर्टी। विद वन प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? अगर ए मैट्रिक्स है उसको अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है। ऐसा नहीं कि रैंडम डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, with one particular relation you can reduce this matrix A into its diagonal matrix. So that is the title. Diagonalization means what? Converting a given matrix into diagonal matrix. I think ये clear हो गया अभी आपको। Okay, now let me first explain the definition of similar matrix. I think ये अभी तक आपने, I don't know whether you have learned this or not. So a square matrix, what is the meaning of similar matrix? Similar matrix is different from equal matrix. समझ में आ रहा है? सिमिलर मैट्रिक्स इज डिफरेंट एंड इक्वल मैट्रिक्स आर डिफरेंट। इक्वल मींस इंडिविजुअल एंट्रीज आर सेम। इक्वल मींस इंडिविजुअल एंट्रीज आर सेम। ओके, जैसे कि 1 2 3 4 दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इंडिविजुअल एंट्रीज आर सेम। सिमिलर मैट्रिक्स इज डिफरेंट। तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिमिलर टू मैट्रिक्स ए if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse A into P. Okay, थोड़ा आपको अभी initially it will take time. Okay, but let me explain in a simple way. B matrix is similar to matrix A. क्या डेफिनेशन है? If there exists, अगर वहां पे एक P मैट्रिक्स, आपको ये सब कुछ मैट्रिक्स के लिए चल रहा है, if there exists a non-singular matrix. Non-singular matrix means what? Determinant is not equal to 0. If there exists a non-singular matrix P such that this matrix B is equal to product of P inverse A into P. Is this clear now? Sir, I didn't get it, sir. Can you please explain this whole part again? See, matrix B is similar to matrix A. In which case you can say these two matrices are similar. यही मुझे explain करना है ना? When yes, I can say these two matrices are similar. Okay, तो डेफिनेशन क्या है? अगर वहां पे
अगर वहां पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको मिलता है या आपको फाइंड आउट करना है, अगर मिलता है तो ही आप सिमिलर बोलोगे, नहीं मिलता है तो इट इज नॉट सिमिलर, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट और इफ वी कैन फाइंड अ मैट्रिक्स P, if we can find a matrix P whose determinant is not equal to 0 such that this matrix B is equal to product of P inverse A into P, मतलब ये मैट्रिक्स B और P inverse AP इक्वल आना चाहिए। तो यहां पे एग्जैक्टली मैं दोनों को इक्वल नहीं ले रहा हूं, दे आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू दिस। इज दिस क्लियर नाउ? टू मैट्रिक्स और नॉट इक्वल, इक्वल नहीं ले रहा हूं मैं, ओके, दे आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन वी कॉल इट अ सिमिलर मैट्रिक्स। तब आप उस केस में बी और ए को सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हो। देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सिमिलर। तो वो जो डिटरमिनेंट P के लेफ्ट साइड में सर वो साइन किस चीज का है सर, समझा नहीं। कौन से? हाँ, ये देयर एक्सिस्ट है। हाँ, ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। इरेज एवरीथिंग। आप ये करने वाले हो, बस बेसिकली आप ये P मैट्रिक्स आप ही कैलकुलेट करने वाले हो, आप चेक करने वाले हो कि वो सिमिलर है कि नहीं, तो वो वैसे भी आगे समझ में आ ही जाएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सो डेफिनेशन बेसिकली क्या है? B मैट्रिक्स इज सिमिलर टू मैट्रिक्स A। B मैट्रिक्स इज सिमिलर टू मैट्रिक्स A इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। नॉन सिंगुलर तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that B matrix is exactly equal to P inverse into AP. Is it clear now? अगर वहां पे P मैट्रिक्स आपको मिलता है कि जिसका इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स A एंड P, मतलब P इनवर्स A इंटू P, इन तीनों का प्रोडक्ट अगर B मैट्रिक्स आता है तो आप B को क्या बोल सकते हो? B सिमिलर टू मैट्रिक्स A। बोथ आर सिमिलर। Sir, if B is similar to A, then A is similar to B is also Yes, correct. obviously ना, you can change this ना, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो ना, P से मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई बाय P एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स, डन ना। Sir, पर वो तो उल्टा हो जाएगा ना। नहीं, इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल नॉट अफेक्ट, ओके। Sir, the questions we can expect sir that A and B matrix will be given to us and we have to find out P or something, right sir? हाँ, तो वो P कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज द एप्लीकेशन, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ओके। मतलब A मैट्रिक्स में आपको दे रहा हूं, ओके, आप ये एक सिमिलर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने वाले हो B यूजिंग दिस P, ओके। मैं बोलता हूं आगे, अभी बस इतना याद रखो, व्हेन दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर, when these two matrices are similar, if there exists a P matrix such that A is equal to P inverse B into P. And sir, this B would be a diagonal matrix, right sir? I mean, that you will come to know. What is that P? What is that P? Okay. Okay. No sir, I was talking about B, not P. B matrix is diagonal. ये diagonal हो जाएगा, okay? कैसे ये सब कुछ होगा ना, you will understand, okay? Okay. अभी पहले ये definition में कुछ doubts है। ये इन जनरल डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिक्स की। आप मुझे ये बोलो अभी, ओके, ये इन जनरल मैट्रिक्स है कि व्हेन दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स A इक्वल टू P इनवर्स B इनटू P, देन A एंड B आर सिमिलर, ठीक है। या तो रिवर्स में लिखो, कैसे भी लिखो, एट देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप इन दोनों को सिमिलर बोलते हो, ओके। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे यहाँ पे डायगोनलाइजेशन पे वर्क करना है। आई वांट टू डायगोनलाइज अ गिवन मैट्रिक्स, मींस अगर A मेरा गिवन मैट्रिक्स A, मुझे इसको डायगोनलाइज करना है, मींस व्हाट? Means what? I have to convert this matrix into D and what? I want to say that these two matrices are similar. Yes sir. यही तो रोल है ना, मुझे डायगोनलाइज करना है, मतलब A मैट्रिक्स को मुझे डायगोनल में कन्वर्ट करना है सो दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर। ऐसे मुझे उसको डायगोनलाइज करना है कि ये दोनों सिमिलर आने चाहिए, सिमिलर विद दिस कंडीशन, तो दैट इज नथिंग बट अ डायगोनलाइजेशन। सो इट इज अ प्रोसेस in which given matrix A reduced to diagonal matrix with entries on diagonal are eigen values। देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स तो इजीली हो रहा है, बस डायगोनल पे आइगन वैल्यूज रखने, करेक्ट है, ओके, यही तो आप कर रहे हो, ठीक है। बट वो P कैसे मिलेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ बाद में, ओके। सो तो बेसिकली उनका रिजल्ट क्या है, डायगोनलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? किसी भी A मैट्रिक्स को अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विद दिस सिमिलैरिटी कंडीशन, मैंने आपको पहले बोला है, मैं रैंडमली डायगोनलाइज नहीं कर रहा हूं,
मतलब कोई भी मैट्रिक्स लिया, बाकी के एंट्री जीरो करो और डायगोनल में कन्वर्ट करो। इस अप्रोच से मैं नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूं सो दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर। पहली कंडीशन, यस सर, ये दोनों क्या आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन भी नहीं बोल सकते हो आप, बट सेकंड आपको क्या समझ में आ रहा है, उस केस में जब आप ए मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करते हो with the condition what these two matrices are similar, in this case this D matrix is always a matrix whose entries are eigenvalues. Sir, that means sir, first we are going to calculate the eigenvalues of matrix A, right sir? Then we are going to substitute Yes. it into the diagonal matrix. yes. तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करोगे, ए के आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करोगे और डी मैट्रिक्स आपका क्या होगा, जस्ट पुट दोज आइगन वैल्यूज ऑन डायगोनल, डन। और आप यू कैन वेरीफाई दिस, ये दोनों मैट्रिक्स हमेशा सिमिलर ही आते हैं। सो मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए, a diagonal matrix with the entries on diagonal are eigenvalues are always similar. This is the definition of diagonalization. Sir, one doubt sir. Sir, आइगन वैल्यू सर कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कौन से भी ऑर्डर में कि कोई भी वैल्यू ऊपर there is one sequence. That sequence is depend on p. क्योंकि अभी सिमिलर है तो वहां पे मुझे p आपको शो करके देना होगा ना, मुझे बोलना होगा ना कि व्हाट इज दैट p which ensure that these two matrices are similar. यस सर, क्योंकि तभी आप बोल सकते हो ना ये दोनों सिमिलर है। अभी तो मैंने बोला है कि डायगोनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन रिड्यूस दिस मैट्रिक्स ए इनटू डायगोनल मैट्रिक्स विद द कंडीशन दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट व्हेन आई से दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर इट मींस आई हैव टू फाइंड, मुझे फाइंड आउट करके देना होगा सो दैट ए इज इक्वल टू मैंने आपको बोला कि यू कैन गो विद रिवर्स आल्सो, सो दैट डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इनटू पी। तो ये p मुझे आपको देना होगा, व्हाट इज दैट p व्हिच एंश्योर दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर। ओके, आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। एट देन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन यूज करो। मैंने आपको पहले बोला ए एंड बी में ये बी और ए इंटरचेंज भी होता है, दैट विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, तो ये p क्या होता है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। व्हिच एंश्योर, व्हाट इज दैट p व्हिच एंश्योर दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? Any doubt in this statement? Now I have to find a matrix P which ensure these two matrices are similar. Okay, let me explain one more time now. अभी इसके आगे आपको समझ में आना चाहिए। प्रोसेस ट्रिवियल है, कुछ नहीं करने, जो आप इसमें जो भी कैलकुलेशन है वो आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया है। क्या करने वाले हो आप, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स से कैलकुलेट करने वाला, जो आपको हमने पहले ही बोला है। बट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। मैं आपको एक मैट्रिक्स ए दूंगा और मेरा क्वेश्चन क्या है, इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करो। इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना इज नथिंग बट व्हाट, फाइंड अ सिमिलर मैट्रिक्स डी विच इज डायगोनल। करेक्ट है? यस सर। डायगोनलाइज मैट्रिक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, इसका मतलब आपको एक डी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है विच इज सिमिलर टू मैट्रिक्स ए। करेक्ट? यस सर। सो टू डू दिस, या इफ आई वांट टू से दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर, तो मुझे वहां पे एक पी भी कैलकुलेट करना होगा, पी मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी मुझे चाहिए। ओके, एंड एक और कंडीशन क्या चाहिए, इन दोनों में ये कंडीशन आनी चाहिए, ये मुझे इंश्योर करना। आई वांट टू फाइंड दिस पी विच गिव्स मी डी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ओके, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता है। क्या पता है? ये जो डी मैट्रिक्स होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स विद एंट्रीज ऑन डायगोनल आर आइगन वैल्यूज। And now let me tell you what is this P matrix which ensure this two matrices are similar. क्योंकि P matrix मिलता है तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों सिमिलर है। Without P you can't conclude anything about their similarity. Okay. Now what is that P? P basically होता है, P is a matrix of eigenvectors. Done. What is that P? Is a matrix of eigenvectors. अभी एक क्वेश्चन जो आपसे ही मुझे आया था कि सर इज दिस सीक्वेंस इंपॉर्टेंट? यस, इट इज इंपॉर्टेंट। जब आप यहाँ पे λ1 लेते हो तो P मैट्रिक्स में आपका जो पहला वेक्टर होगा वो λ1 के करस्पॉन्डिंग ही होगा। अगर आप सेकंड पोजीशन पे λ2 लेते हो तो जो आपका सेकंड वेक्टर होगा या सेकंड कॉलम होगा वो λ2 के करस्पॉन्डिंग ही होगा। अगर आप यहाँ पे λ3 लेते हो तो जो थर्ड कॉलम होगा वो λ3 के करस्पॉन्डिंग ही होगा। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, गॉट इट। हाँ, ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है? नाउ यू गिव मी। सर दैट मींस सर
सर पहले हमें सारी चीजें निकालनी है ना मैट्रिक्स ए के लिए सर, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, देन वी कैन डू लीस्ट यस, ऑपरेशंस। हम सारी चीजें कैलकुलेट करने वाले और हम ये बोलेंगे ये डी मैट्रिक्स होता है और ये पी मैट्रिक्स होता है जो ए को डी में कन्वर्ट करता है। ये बस शो करना है उनको, कुछ नहीं है, जस्ट वी हैव टू शो देम कि ये होता है डी मैट्रिक्स, ये होता है पी मैट्रिक्स विच कन्वर्ट ए मैट्रिक्स इनटू डी मैट्रिक्स, डन। तो मैंने आपको पहले बोला था इसमें कोई भी नया पार्ट नहीं आने वाला, एक और रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर? इसका इंपॉर्टेंस आपको मैं बोलता हूं, इसका यूज करके आप मैट्रिक्स की कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हो इन अ वेरी इजीएस्ट वे। ये जनरली प्रोग्रामिंग में ये पार्ट आता है, आपको अभी उतना इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्या होता है, सी आप ये देखो, लेट मी जस्ट टेल यू वन सिंपल एप्लीकेशन। अगर कहीं पे किसी प्रॉब्लम में आप, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर केसेस में मैट्रिक्स जनरेट हो ही जाता है, या अगर आपके पास एक डाटा है तो आप उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, तो आपको पता है कि उस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें एंट्रीज सारे क्या रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे, ज़्यादातर एंट्रीज नॉन जीरो रहेंगे, इन जनरल में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर ऑपरेशन करना आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना, अभी जब आप रिसर्च कोई करते हो ना तो उसमें ये 3x3 के 4x4 के मैट्रिक्स नहीं आते, आपको वहाँ पे 100x100 10x10 इतने लेंदी मैट्रिक्स आते हैं, तो उनका स्क्वायर कैलकुलेट करना, उनका क्यूब कैलकुलेट करना थ्रू सॉफ्टवेयर ऑल्सो इट टेक्स टाइम। सी जनरली एज योर ब्रांच आपका मेजर फोकस होता है ना कि वो ऑपरेशन आपको लेस टाइम में आना चाहिए। मतलब अगर मैंने कैल्सी में बोला कि लेट मी गिव मी ए क्यूब, तो कैल्सी में आपको अभी इमीडिएटली आ रहा है, व्हाई यू विल गेट इमीडिएट आंसर, क्योंकि 3x3 का ही मैट्रिक्स है। आप ये सेम कैल्सी में अगर वो ऑपरेशन, मतलब वो अगर एक्सटेंड करते हैं 10x10 तक जाते हैं अगर वो, तो उनको टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए वो उतने हायर ऑर्डर के मैट्रिक्स आपके कैल्सी में नहीं है। अगर उनको वो सेट करना है तो आपको आगे समझ में आएगा। एक इंटीग्रेशन, डेफिनाइट का इंटीग्रल कैलकुलेट अगर आप कैल्सी में करते हो ना, ES या EX में, इट विल टेक अराउंड 10 to 11 सेकंड टाइम लेता है वो, इतने इमीडिएटली इक्वल पे नहीं वो आपको देता है आंसर, ठीक है। तो बेसिकली आपका रोल क्या होता है, आपको टाइम लेस करना है, आपको वो ऑपरेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको आना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से आप उसके डायगोनल पे परफॉर्म करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डायगोनल पे इजीली ऑपरेशन हो जाएंगे एंड यू विल गेट सिमिलर रिजल्ट्स फॉर मैट्रिक्स ए। मतलब क्योंकि अभी ए मैट्रिक्स सिमिलर टू डी जा रहा है ना, तो आप सारी चीजें डी पे परफॉर्म करोगे और डी का जो भी कंक्लूजन होगा सेम कंक्लूजन इज देयर फॉर मैट्रिक्स ए। दिस इज द इन जनरल एप्लीकेशंस ऑफ दिस डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। ओके, नाउ लेट मी, बोलो ना फिर एक बार एकदम क्विक बताओगे क्या था? हाँ, अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो व्हाट इज दिस टॉपिक? मैं आपको एक मैट्रिक्स ए दूंगा, आई विल गिव यू वन मैट्रिक्स, और माय क्वेश्चन इज व्हाट, डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स। अभी आप बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनलाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स? बोलो ना, रॉन्ग आने दो। व्हाट यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको बोलता हूँ डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स ए, तो आप क्या करोगे? कन्वर्ट डायगोनल मैट्रिक्स, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू, लेट मी कंसीडर बाय अनदर कलर, हाँ, कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू diagonal matrix, but with one condition, what? These two matrices are similar. करेक्ट है, यही तो आप करोगे ना। बट अगर इन दोनों को मुझे सिमिलर बोलना है तो मुझे क्या करना होगा? इफ आई वांट टू से दैट दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर, तो मुझे क्या करना होगा? मैंने डी तो कैलकुलेट किया, मैंने डी क्या कैलकुलेट किया? आइगन वैल्यूज रखे वहां पे, है ना, आपको पता है डी क्या आने वाला है। डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स से, तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर डी ये होता है उसका डायगोनल मैट्रिक्स, या आपका आंसर आ जाएगा मुझे इमीडिएटली। ओके, नो प्रॉब्लम। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों वेदर दिस टू आर सिमिलर और नॉट, आपको पता है वो ऑलरेडी आने ही वाला है, बट ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चेक वेदर दिस टू मैट्रिक्स आर सिमिलर और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? How you check these two matrices are similar or not? P कैलकुलेट करना होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये एक P आप ले लो, take this as P. Okay, with this P I can say that A and D are similar, or this D matrix is equal to P inverse A into P.
एंड ये पी क्या होता है, लैम्डा 1 का जो आइगन वेक्टर है वो होता है फर्स्ट कॉलम, लैम्डा 2 का जो आइगन वेक्टर है वो होता है सेकंड कॉलम, लैम्डा 3 का जो लैम्डा 3 की जो आइगन वैल्यू उसका आइगन वेक्टर जो है वो थर्ड कॉलम। तो आपको बस एग्जाम में ये लिखना है, टेक दिस एज डी, टेक दिस एज पी, ओवर, क्वेश्चन एंड। सर एक डाउट है सर अगर P का मैट्रिक्स सर सिंगुलर आ गया सर तो फिर ये हम ला ही नहीं सकते ना सर then डायगोनल you can say that, then you can now correct question, okay, यही मेरा नेक्स्ट पार्ट था। ओके यहाँ पे एक कंडीशन थी कि वो मैट्रिक्स भी नॉन जीरो चाहिए, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली अभी क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन इफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, व्हाट इज योर आंसर? P inverse is not a No, 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 no. This matrix is not diagonalizable. We cannot diagonalize that matrix. करेक्ट ना? ये तभी होगा जब वो आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स नॉन जीरो आएगा। अभी उसके लिए भी आपको आइगन वैल्यूज पे कंडीशन है। ओके, अभी यहां तक समझ में आ रहा है? इफ P is zero, then this matrix is not diagonalizable. Any doubt up to this statement? नो सर। ओके, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ओके, अभी मुझे ये बोलो, मुझे आइगन वैल्यूज पे क्या कंडीशन डालनी होगी सो दैट आई विल ऑलवेज गेट अ नॉन जीरो मैट्रिक्स हियर। फिर से सुनो, व्हाट कंडीशन आई नीड टू पुट ऑन आइगन वैल्यूज विच एंश्योर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज ऑलवेज नॉन जीरो। और लेट मी गिव वन रिजल्ट। मैंने आपको एक रिजल्ट दिया था, क्या था वो रिजल्ट? आइगन वेक्टर्स, I don't know whether eigen vectors corresponding to distinct eigen values are always, okay, let me give you here, eigen vectors, अगर नहीं पता है तो चलो, corresponding to distinct, should not be independent. corresponding to distinct eigen values are always linearly independent। स्टेटमेंट क्या है कि अगर आप जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहेंगे उतने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स रहते हैं। डिस्टिंक्ट इन द सेंस दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज पे ये कंडीशन डालता हूँ, क्या कंडीशन है? दिस आइगन वैल्यूज आर, दिस ऑल थ्री आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट इन रिपीटेशन। ऑल दिस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट इन रिपीटेशन। तब मुझे उसके आइगन वेक्टर्स भी क्या मिलेंगे? डिस्टिंक्ट ही मिलेंगे। डिस्टिंक्ट इन द सेंस दे आर इंडिपेंडेंट ऑलवेज। प्रॉब्लम आती है रिपीटेशन में, ओके, प्रॉब्लम आपको हमेशा आती है रिपीटेशन में, ओके, बाद में प्रॉब्लम आपको हमेशा आती है रिपीटेशन में। जब आपकी आइगन वैल्यू रिपीटेशन में आती है ना, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें आप दो आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करते हो। अभी वो, ओके, लेट मी क्लियर दिस पार्ट आल्सो, ठीक है, बट अभी इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, बट ये आई थिंक यहाँ तक आप याद रखो। और भी कुछ रिजल्ट्स है बट जिससे और आपका कंफ्यूजन होगा। ओके, सो एट द एंड इतना तो आपको क्लियरली पता है कि आइगन वैल्यूज अगर आपके डिस्टिंक्ट आते हैं तो आइगन वेक्टर्स भी डिस्टिंक्ट ही आएंगे, तो उनका जो डिटरमिनेंट होगा वो भी नॉन जीरो होगा। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो दैट मैट्रिक्स इजीली कन्वर्टेड इनटू डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल। इसमें एग्जांपल इन केस अगर सेम आइगन वैल्यूज आ रही है सर तो हाँ, एट द एंड अगर पी मैट्रिक्स आपका जीरो आता है, ओके, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन विद द आइगन वैल्यूज राइट नाउ, बट इतना याद रखो ये पी मैट्रिक्स इज जीरो, देन दैट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ओके, वो रिजल्ट है क्या, एक बार मैं चेक करता हूँ। In case of repetition also you can find सर बोलो। सर क्वेश्चंस करते वक्त ही समझ लिया क्या ऐसे करें तो बहुत कंफ्यूजन होता है फिर। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मुझे आपको क्लियर करना है, ठीक है? हाँ, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी आपको मुझे ये बोलो, इतना तो समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे ए मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करना है। ओके, आई विल एक्सप्लेन वन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। मुझे सी इसमें मैथमेटिकली मैं अगर क्वेश्चन लेता हूँ तो जल्दी समझ में आ ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जितना आपको नॉलेज है ना उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं, एक और बार ट्राई करते, नहीं हो रहा तो आई विल टेक वन एग्जाम्पल। मुझे ए मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करना है, फाइन। डी मैट्रिक्स होता है आइगन वैल्यूज,
उसके करस्पॉन्डिंग मुझे P मिलता है, करेक्ट ना? D से ही मुझे P समझ में आता है ना, लैम्डा 1 का फर्स्ट, लैम्डा 1 की जो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू की जो आइगन वेक्टर है दैट विल बी माय फर्स्ट कॉलम, लैम्डा 2 का आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम, लैम्डा 3 का आइगन वेक्टर थर्ड कॉलम, दैट विल बी माय P। अभी क्वेश्चन क्या है, इन विच केस P इज नॉन जीरो, इन विच केस P इज जीरो, और इन विच केस P इज डिफाइन, करेक्ट ना? यस और नो? हाँ, अब ये मुझे आप बोलो, मुझे आपसे आंसर चाहिए। अगर मेरे पास आइगन वैल्यूज ये आते 1 2 2, रिपीटेशन में भी ये वर्क करता है, बट कहां पे करता है आपको ही समझ में आएगा, ठीक है? ओके, तो मुझे ये तो पता है कि 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक आइगन वेक्टर मिलेगा, क्लियर ना? यस सर। 2 के करस्पॉन्डिंग कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। That is not sure ना, it depend on example. In some cases I may get 1, in some cases I may get 2, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, Yes, तो अगर मुझे एक ही मिलता है, क्योंकि ऐसा एग्जांपल मैंने लिया है, 2 आइगन वैल्यू थी बट एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा था, कैन इट बी डायगोनलाइजेबल? No. No, sir. What is the problem? No, sir. What is the problem? You can't write Determinant of P is zero. P डिफाइन ही नहीं होगा ना, वो स्क्वायर ही नहीं आएगा, क्योंकि यस सर। दोनों आइगन वैल्यूज 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो एक ही मिलेगा, है ना? अगर आप दोनों वेक्टर सेम लेते हो तो डिटरमिनेंट क्या आएगा? Zero. But what happen if I get 2 आइगन वेक्टर here? वी कैन डायगोनलाइज इट। 100% you can diagonalize। अभी हो गया सर, सर अगर मान लीजिए सर, अगर 2 ही मिलते हैं सर आइगन वेक्टर सर सपोज मान लीजिए 2 के लिए सर एक आइगन वेक्टर मिल रहा है सर, मतलब कॉमन सर, तो उससे सर 2 बार रिपीट करके अगर लिखेंगे तो डायगोनलाइज नहीं हो सकता है कि सर, या फिर लिखो ना, चलो 2 बार रिपीट करके लिखता हूं, आपको नहीं समझ में आ गया प्रॉब्लम को, 2 बार रिपीट करके लिखो, चलो। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, इसका डिटरमिनेंट क्या है? सॉरी हाँ, यस करेक्ट, ओके, चलो यही तो क्वेरीज है जो आपके सॉल्व होनी चाहिए। हाँ, अभी मुझे ये बोलो, हाँ अभी ये तो क्लियर हो गया कि एक आइगन वेक्टर मिलता तो प्रॉब्लम होगी, अगर 2 मिलते हैं तो वो तीनों, क्योंकि आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट ही आते हैं, हमेशा याद रखो, आइगन वेक्टर्स कहीं पे भी कैलकुलेट करो वो इंडिपेंडेंट ही आते हैं, आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ये दिमाग में फिट करो पहले। हाँ, तो सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली डायगोनलाइज हो जाएगा, ठीक है? अभी समझ में आ रहा है? ऐसा कोई रिजल्ट प्रिंटेड नहीं है किसी भी बुक में, बट दिस इज द ट्रिक बाय विच यू कैन इमीडिएटली चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। आइगन वेक्टर्स का काउंट कितना आ रहा है ना, उससे समझ में आता है कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं। अगर वो 2 काउंट 3 मैट्रिक्स है और 2 ही आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। 3x3 का मैट्रिक्स है, यू विल इफ यू गेट ऑल 3 आइगन वेक्टर्स इट इज डायगोनलाइजेबल। क्लियर? यस, ठीक है, ओके, विल टेक एग्जांपल ऑन ईच पार्ट। तो उससे सर एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट ऑन दिस कांसेप्ट? इस पे आपको आता है कि ऐसे डायरेक्टली आएगा कि वेदर दिस गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। इतना बस सिंपल रिजल्ट याद रखो, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि आपको थ्योरी प्रॉपर पता है आइगन वेक्टर्स की, ठीक है? व्हेन इट इज डायगोनलाइजेबल, व्हेन मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल। ओके, फर्स्ट फॉर 3x3 मैट्रिक्स क्या रिजल्ट होगा? व्हाट इज माय फाइनल कंक्लूजन फॉर 3x3 मैट्रिक्स? यू मस्ट गेट 3 आइगन वेक्टर्स। 3 आइगन वेक्टर, यस। तो जितनी मैट्रिक्स की ऑर्डर है, या इसको और इजी कर सकते हैं ना, ओके, इन विच केस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is equal to number of eigen vectors। यस सर, 2x2 के लिए भी वर्क करेगा ना सर ये? यस, इट इज फॉर ऑल। जितने ऑर्डर है उतने आइगन वेक्टर चाहिए, नहीं आते नॉट डायगोनलाइजेबल, आते डायगोनलाइजेबल। यस सर, दिस इज द थियरी, ठीक है? हाँ, अभी एग्जांपल ट्रिवियल है। कितना टाइम है हमारे पास? कैन आई टेक वन एग्जांपल? 8 minutes। कितना है? 8 मिनट्स 8 मिनट्स है ना? 10 to 10:50, ठीक है, ओके। और कुछ इसमें डेफिनेशंस है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस डी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज मॉडल मैट्रिक्स, ओके। दिस पी मैट्रिक्स कॉल्ड एज मॉडल मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स है वो, ठीक है? ये स्टेप्स है।
बट इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी टेक वन एग्जाम्पल, क्विकली लेता हूँ. एक एग्जाम्पल हो जाता तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा. सो क्वेश्चन 1, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ. अभी उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हाँ ये ही लेता हूँ मैं, 2x2 का लेते पहले, इजी लेते. क्या क्या क्वेश्चन है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. फाइंड अ मॉडल मैट्रिक्स P. P क्या होता है आपको समझ में आता है, जो क्या इंश्योर करता है, D एंड A सिमिलर है, करेक्ट ना. P मैट्रिक्स इंश्योर A एंड D आर सिमिलर, विच डायगोनलाइज मैट्रिक्स A, वो P कैलकुलेट करो, एंड ऑल्सो वेरीफाई P इनवर्स AP इज इक्वल टू D वेयर D इज द डायगोनल मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड्स A रेज़ टू 6. यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे है ना, ये ऑलरेडी ये दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल, बोलो करेक्ट ना, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करने के लिए बोला ना ये स्टेटमेंट. यस सर. तो ये ऑलरेडी डायगोनलाइजेबल है. ओके, आपको बस उनको P देना है और D देना है. P होता है आइगन वेक्टर्स का, D होता है आइगन वैल्यूज का. डन. बट अगर मैं ये पूछता, हाँ बोलो. स्टेटमेंट में सर मॉडल मैट्रिक्स लिखा है सर, मतलब मॉडल का क्या मतलब है सर? ओके, वर्ड से आई डोंट नो. ओके, आई डोंट नो what is the meaning of that word with respect to this P. Okay, that I need to check why they consider model here. Okay, yes sir. हाँ, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको डायरेक्टली ये पूछूंगा, इज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. उसके लिए बस आप ये रिजल्ट याद रखो. आगे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर होगा कौन सी केस में डायगोनलाइजेबल होता है. जितने ऑर्डर है उतने आइगन वेक्टर चाहिए. जस्ट रिमेंबर दिस वन रिजल्ट. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नाउ. सॉल्यूशन. सो आई हैव टू डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स. तो मुझे D कैलकुलेट करना होगा पहले. D होता है आइगन वैल्यूज का मैट्रिक्स. ओके, तो इन सारे इस टॉपिक में पहला अप्रोच आपका क्या है, फर्स्ट फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. पहला फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स. सो लेट मी राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. बोलो मुझे क्विकली. लैम्बडा स्क्वायर माइनस 7 लैम्बडा हाँ प्लस -2 10 plus 10 is equal to 0. What are the roots? 5 minus 5 plus 2 5 2,5 5 to 5. 7 Okay? by 5 to 2 is 10 and their sum is this. Okay, so these are the eigen values. ठीक है, done. Now let me calculate eigen vectors. So case 1, for lambda is equal to 2. उसके करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है. सो कैन आई राइट डायरेक्टली दिस A माइनस लैम्बडा I टाइम्स x इज इक्वल टू 0. दैट इज व्हाट A माइनस 2 टाइम्स I ऑफ x इज इक्वल टू 0. दैट इज 2 1 2 1 है ना, टाइम्स x1 x2 या ट्रिपल होगा इज इक्वल टू 0 0. तो इसका ऑगमेंटेड जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0. दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2 1 0. ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म. सो व्हाट इज द लीनियर सिस्टम, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. अभी मैं वो चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता ही है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सब कुछ है. तो एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो मुझे x2 को क्या पुट करना होगा, t. करेक्ट ना? यस सर. इज बेटर टू पुट x1 एज t, है ना, फ्रैक्शन अवॉइड होगा. x1 एज t, तो x2 क्या होगा, -2t. ठीक है, तो व्हाट इज दिस आइगन वेक्टर, कैन यू टेल मी डायरेक्टली. इसको मैं x1 बोलता हूँ अभी. हाँ, व्हाट इज दिस आइगन वेक्टर, -1 -2. डन. इमीडिएटली नेक्स्ट भी कैलकुलेट करते हैं. मैंने जंप करके लिखा है, तो थोड़ा आप वो देखो. यस सर. नाउ केस 2 वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू 5. तो मेरा पहला स्टेटमेंट होगा A माइनस
5i टाइम्स x इज इक्वल टू 0। क्या आता है ये सिंप्लीफिकेशन, बोलो। -1 1 1 2 2 -2 -2 times x1 x2 0 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। कंसिडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी डायरेक्टली भी आप कर सकते हो जितने आपके अंडरस्टैंडिंग है। -1 1 0 2 -2 0। दिस इज कन्वर्टेड इनटू -1 1 0 0 0 0 0। दैट इज -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। एक ही इक्वेशन है तो किसी एक को असाइन करना होगा। लेट x2 इज t, सो x1 क्या होगा t, है ना। सो व्हाट इज माय x2, व्हाट इज माय सेकंड आइगन वेक्टर -t 1 and 1 ना, करेक्ट ना। यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? डन। सर ऑल्सो सर ये 2x2 मैट्रिक्स है सर, तो हमेशा एक्सपेक्टेड ये होगा ना सर कि ये जो नीचे वाली जो रो है ये 0 0 0 ही आएगा हमेशा। करेक्ट ना, हमेशा। डन। अभी आपको कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं? 2। कैन आई राइट दिस? डायगोनलाइजेबल। इसके बाद आपका स्टेटमेंट आना चाहिए देयरफॉर गिवन, इसके बाद ही समझ में आता है ना, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, हाँ, अब ये डायगोनलाइजेबल है तो इसका डी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 -2 1 लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2, दैट इज 2 0 0 5। हाँ, करेक्ट, 2 0 0 5। और इसका पी मैट्रिक्स क्या होगा? पहले आपने 2 लिखा है तो 2 का आइगन वेक्टर क्या था? 1 -1। फिर आपने 5 लिखा है, 5 का आइगन वेक्टर क्या है? 1 1। सच दैट, अब ये मतलब ये डी होता है, ये पी होता है, विच सेटिस्फाइज दिस। टी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी। आप चाहो तो ये वेरीफाई करो, उन्होंने बोला भी था क्वेश्चन में, वेरीफाई दिस आल्सो। तो कैलकुलेट आरएचएस, पी पता ही है आपको। P inverse will be 1 -1 2। इसका इनवर्स स्टोर करो कैल्स में जल्दी, और इसका इनवर्स बोलो मुझे। पी इनवर्स, और जरूरत नहीं, कैल्स में एक टाइम पे करते हैं, एक टाइम पे करते हैं पूरा 1 -1 2 1। 4 1 2 3। एक मिनट ना, ए मैट्रिक्स क्या था? 4 1 2 3। इसका मैं ऐसे लिखता हूँ, इनवर्स नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि कैल्स में करने वाले। और ये एज सर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना सर 2x2 मैट्रिक्स के लिए। कर सकते हो ना, वो पता है ना आपको, ट्रिक है ना, वो रिवर्स लिखे माइनस साइन करके और डिटरमिनेंट से डिवाइड करके। नो प्रॉब्लम। 1 -1 2। एनीवन? हाँ, चेक दिस प्रोडक्ट, ये हमेशा डी आना चाहिए, आता ही है वो। चेक दिस प्रोडक्ट, आपके मैट्रिक्स स्टोर करके और मुझे बोलो जल्दी से, या वेरी लेस टाइम। लेट मी स्टोर हियर आल्सो। एक टाइम पे कैसे करना है कैलकुलेशन, लेट मी शो यू। 4 1 2 3 स्टोर हो गया। AC ऑप्शन पहले क्या है? नहीं सर, एक और स्टोर करना होगा ना, ये A स्टोर हो गया, एक और स्टोर करता हूँ। P 2/2 का क्या है वो? 1 1 -2 1 -2 1। नाउ लेट मी चेक ये प्रोडक्ट क्या आता है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना होगा? पहले बी मैट्रिक्स का इनवर्स, है ना, फिर यस सर। पहला वाला मैट्रिक्स वो था A, फिर बी मैट्रिक्स, करेक्ट। मैट बी इनवर्स मैट A इंटू मैट बी, एंड यू कैन चेक क्या आ रहा है वो 2 5। यस सर, डायगोनलाइजेबल। यस सर, दिस इज द रिजल्ट, डन, विच इज इक्वल टू D, विच इज इक्वल टू RHS। इतना ही आपको आता है एग्जाम में। डायगोनलाइज दिस मतलब P कैलकुलेट करो, यही मैंने ये आपको कैलकुलेट करके देना है। यहाँ पे वेरीफाई बोला था इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट चेक किया है, वो आता ही है हमेशा, बिकॉज दैट इज द थ्योरम। ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे, विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। ठीक है, विल टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन डायगोनलाइजेशन। ये टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा, डोंट वरी। कुछ भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो दैट आई विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर।